کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکال کر جنت کے پانی سے دھویا گیا، وہ دیکھے کہ اگر دل نکالنے کے بعد لگایا جا سکتا ہے تو وہ دیکھ کر ہی بائی پاس کیا جاتا ہے۔ یہ میری گزارش ہے، یہ تو کیا ہے، ہم 200-250 بچوں کو دے دیں گے، آج دیے اگلے سال کوئی اور کو دے دیں گے، مگر ہمارا مقصد پورا نہیں ہوتا ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں اس سال 50 بچے UPSC میں کامیاب ہوئے تو یہاں کے فرقہ پرستوں کے سینے پر سانپ لوٹنے لگا ہے۔ وہ سوچنے لگے ہیں کہ مائنورٹیز کے اتنے بچے کیسے نکل گئے۔ تو میں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ہماری اپنی زمین پر ہماری اپنی قوم کے لیے، ہمارے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک چہرہ جو بار بار گشت کرتا ہے، گردش کرتا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، بہت سارے غریبوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے شخص ہمیشہ رات ہو دن ہو آپ کے ہمارے درمیان ہوتا ہے۔ میں بہت ادب اور احترام کے ساتھ علی جناب الحاج یوسف الیاس صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور صدارتی خطبے سے ہمیں نوازیں۔ اس کے محمد صلی اللہ رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس با مقصد پروگرام میں آئے ہوئے ہمارے معزز مہمان، میری ماں بہنیں اور دوستوں اور ساتھیوں، صوفی ملت صوفی غلام رسول صاحب کی مجھے آج بہت یاد آ رہی ہے کہ وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی پروگرام کے لیے میرے کمپاؤنڈ میں آیا کرتے تھے، مشورہ ہوتا تھا۔ جہاں معصوم کٹی ہے، جہاں نابینا اور نابیناؤں کا مدرسہ چل رہا ہے، وہاں اگر آپ پہلے سے دیکھے ہوں گے تو وہاں پر نشہ کرنے والے لوگ رہتے تھے۔ آج وہ آپ جا کر دیکھیے، وہاں پر ایک سلائی کلاس چلتی ہے، وہاں پر یتیم بچیوں کا مدرسہ ہے اور بہت ساری خدمات وہ انجام دیتے تھے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ نور العین صاحب، اکبر سیٹھ اور ان کی پوری ٹیم آج وہی راستے پہ آگے بڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ آج ہمارا مقصد لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے کس طرح مدد کیا جائے، یہ مقصد لے کر یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ مگر میں غفران حافظ جی ابھی آپ کو بتا رہے تھے کہ کس طرح آپ محدود کر رہے ہیں۔ اگر آپ اسلام کو صحیح طریقے سے دیکھیں گے، آپ قرآن اور حدیث کی روشنی صحیح طریقے سے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ پورے عالم آپ کی مٹھی میں ہے۔ بائی پاس کب نکلا؟ بائی پاس ڈاکٹرز، سائنسدانوں نے کیوں ریسرچ کیا؟ معلوم ہے، ایک واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکال کر جنت کے پانی سے دھویا گیا، وہ دیکھے کہ اگر دل نکالنے کے بعد لگایا جا سکتا ہے تو وہ دیکھ کر ہی بائی پاس کیا جاتا ہے۔ ایک ٹیم آئی تھی تامل ناڈو اور کیرلا میں، ایک دفعہ سیلاب آیا، یہاں سے ریلیف لے کے گئی، وہاں پر کوئی ریلیف لینے والا نہیں تھا۔ وہاں کا ہر ایک آدمی، ہر ایک گھر ایجوکیشن کے لیے ہے، ہر ایک کا ایک آدمی کوئی دبئی میں، کوئی سعودی عربیہ میں ہے۔ وہاں اگر آپ مدرسے میں گئے ہیں، اگر آپ کو عربی نہیں آتی ہے تو آپ کو وہاں بولنے نہیں دیا جاتا ہے۔ اگر مدارس میں عربی، مدرسے میں تو عربی میں ہی بات کرنا چاہیے، یہ وہاں کا اصول ہے۔ تو وہاں کی ایک ٹیم یہاں اس شہر میں آئی، انہوں نے بتایا کہ ہم ہر مدارس میں سروے کیے، جتنے حافظ قرآن تھے ان کا انٹرویو لیا گیا اور ان کو لگا کہ یہ بچہ بہت ٹیلنٹ ہے، الحمدللہ حافظ قرآن بننے کے بعد اور زیادہ ٹیلنٹڈ ہو جاتا ہے اور زیادہ قابلیت والا ہو جاتا ہے۔ 200 بچوں کو وہ لوگوں نے MBBS کی ڈگری دلوائے، ساتویں کا ایگزام دلایا، 9ویں کا دیا، 10ویں کا دیا، 12ویں کا دیا
और MBBS में डाला गया, वो बच्चे काबिल हो गए। हम क्या करते हैं बोलिए? हमारा बच्चा कहीं मोबाइल देखे एक कोने में बैठा हुआ गेम खेल रहा है। हम ये नहीं देख रहे कि रात का मदरसा है, वहाँ भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए। वो हमारा उनके माँ बाप बेचारे गरीब होते हैं, माली तौर से बहुत, कोई लूम चलाता है तो कोई तरासन भरता है, तो उनके बच्चे लोग, मगर एक बच्चे को मैं ऐसा जानता हूँ, मैं स्कूल बोर्ड चेयरमैन था, नंबर 1 स्कूल में पढ़ता था वो बच्चा, जो रेसेस के वक्त हो थिएटर के पर जाकर चना और खारी बेचता था, वो बच्चा स्कॉलरशिप में टॉप मारा था। हम दिलचस्पी नहीं दिलाते हमारे बच्चों को, ये आप लोग का काम है। मेरी माँ बहनें यहाँ बैठी हुई है, ये दिन भर घर में रहती है, ये अपने बच्चों को जितना ध्यान देगी, और तुम दीनी तालीम दे दिए, हदीस और कुरान की रोशनी में आज पूरी दुनिया कुरान लेके बैठती है, उस पर रिसर्च करती है और उसके बाद वो आगे का काम करती है। ये आप ध्यान रखिए, एक एक आयत में अल्लाह ताला उसका आलिम दीन जो मुफ्तियान इकराम बयान करते हैं, वो सब जवाब है उसका। ये मेरी गुजारिश है, ये तो क्या है, हम 200-250 बच्चों को दे देंगे, आज दिए अगले साल कोई और को दे देंगे, मगर हमारा मकसद पूरा नहीं होता है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में इस साल 50 बच्चे UPSC में कामयाब हुए, तो यहाँ के फिरकर परस्तों के सीने पर सांप लौटने लगा है। वो सोचने लगे हैं कि माइनॉरिटीज़ के इतने बच्चे कैसे निकल गए। आपका बच्चा हर जगह टैलेंट, हर जगह टॉप मार सकता है, अगर आप इस्लाम के बताए हुए रास्ते पर चले। आप जानते हैं ब्राह्मण इस देश का क्या करता है? सुबह 4 बजे उठ जाता है, वो सुबह 4 बजे से अपना मकसद तैयार करता है, मुझे पढ़ना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। शाम 5 बजे से लेके मगरिब तक का वो थोड़ा रेस्ट करता है, मगरिब की अजान होती है, खाना खाता है, ऐसा की अजान होती है, घर पर जाके सो जाता है। हम क्या कर रहे हैं? यही इस्लाम है, यही हमें बताया गया है कि आप अगर सुबह 4 बजे उठेंगे, तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे, फज्र की नमाज पढ़ेंगे, तो उसका अज्र अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा देने वाला है। हम क्या करते हैं? 3 बजे रात तक का हम मोबाइल देखते हुए बैठे रहते हैं, फजर भी गई, तहज्जुद भी गई। हमारा बच्चा कहाँ है? मेरी बाप फोन करते रहती है कि बेटा कहाँ है, आता हूँ, यही बोलता है। अगर सही मानों में आपको इस शहर को, आप, मैं ये नहीं बोलता दुनिया पे काज करो, इस शहर से अगर आपको UPSC IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, जो हाफिज कुरान भी रहे, मुफ्ती भी रहे, आलिम दीन भी रहे और ऑफिसर भी रहे, अगर आप भेजना चाहते हैं, तो ये जो ताउन किया जा रहा है, ये अल्लाह के आगे सबसे अच्छा आपको अज्र देने वाला रहेगा। आपका बच्चा एक काम करेगा, ता क़यामत तक उसका अज्र मिलता रहेगा, आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। ये सोचकर आप यहाँ उठिए। मैं यही गुजारिश करूँगा, हर वक्त तो हमारी यही कोशिश रहती है कि कोई आवे आगे और ये काम करे। आपका अगर कोई रिश्तेदार दिल्ली में होगा तो उनसे पूछिए कि केजरीवाल जो यहाँ पर प्राइमरी KG की फीस 2 लाख रुपया है प्राइवेट स्कूल की, वहाँ पर वो जब चुन कर आया तो प्राइमरी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा अच्छा बना दिया। वो कैमरा लगाया, ऑनलाइन उसके माँ बाप घर बैठकर देखते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। वहाँ स्विमिंग पूल है, कंप्यूटर क्लास है, जो कुछ आप चाहते हैं, यानी आपका बच्चा वहाँ गया तो वहाँ से टैलेंटेड पढ़ा लिखा होकर निकलेगा। ये वो उसकी क़यादत है और हम यहाँ पर क़यादत बनाना चाहिए। अगर आपका बच्चा टैलेंट निकल गया, मैं बच्चा था, छोटा था, हलीम सर और बहुत सारे लोग
तकरीर कर रहे थे कि हमारे पास खाने को पैसे नहीं थे, 2 वक्त तो रोटी नहीं मिलती थी, मगर उस वक्त के मुखैर हजरात उन्होंने देखा ये पढ़े लिखे ज़्यादा टैलेंटेड है, तो उनको अपने खर्चे से भेजकर मास्टर बनाया, डॉक्टर बनाया। उस वक्त तो बहुत गरीबी थी, आज से 40-50 साल पहले। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमको 5 वक्त खाने के दे रहे हैं, सब कुछ सुविधा है। हम अपने बच्चों को क्यों नहीं दीनी तालीम में डालने के बाद असली तालीम में आपको मुकाबला करवाना है। आपकी मस्जिदों में कोई ऐसी चीज निकाले, वो लड़ने के लिए आपके पास ऐसा वकील होना चाहिए, ऐसा बैरिस्टर होना चाहिए। आपके बच्चे का कहीं एक्सीडेंट हो गया या आपकी कौम के लोगों को ज़्यादा बीमारी हो गई, तो ऐसा हॉस्पिटल रहना चाहिए जो 10 रुपये में भी आपका बाईपास का ऑपरेशन करे, कैंसर का ऑपरेशन करे। ये सोचकर आप लोग अपने बच्चों को तालीम दें। ये सब रखा रह जाएगा, यहाँ दुनिया में पैसा रखा जाएगा, प्रॉपर्टी रखी रह जाएगी। आप खाली हाथ जाने वाले हैं। अगर आप हाफिज कुरान हैं, आलिम दीन हैं, डॉक्टर्स हैं, जो जो खिदमत किए जाएंगे वही आखिरत में पूछी जाएगी। यही, और जो माँ बाप अपने बच्चों को ये तालीम देंगे वो जन्नत में जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हाफिज कुरान सबसे पहले जन्नत में जाएंगे और उसके बाद अल्लाह ताला उनको अर्श पे ले जाएंगे, और अर्श पे लेने के बाद नीचे बताएंगे, हश्र के मैदान में लोग खड़े रहेंगे और बोलेंगे बताओ इसमें तुम्हारा कौन है, कौन जान किसको ले जाना। वो हाफिज कुरान इशारा करते जाएगा कि ये तो मेरे चचा हैं, ये मास्टर मुझको बहुत अच्छा पढ़ाते थे, उन जिनकी तरफ इशारा करेंगे उन सबको वो जन्नत में डाल देंगे। ये हाफिज कुरान करने वाले हैं, मुफ्तियान इकराम, आलिम दीन, और उसके बाद ऑफिसर बनाओ। आप जानिए, आप ये मत सोचिए कि मेरा बच्चा मदरसा भी पढ़े, दिन भर स्कूल भी रहे, उसके बाद क्या क्या करेगा। तो हमारा दिमाग आज जितने भी बैठे हैं, जितने भी इस दुनिया में हैं, 4% काम कर रहे हैं। हाफिज कुरान का 5%, 6% काम करने लगता है। 7-8% वाला साइंस दां बन जाता है। 100% आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। आप जानिए, आपके बच्चों में इतना टैलेंट है, वो 5% में हाफिज कुरान बन सकता है, आलिम दीन बन सकता है। ये जो अब्बासिया एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी है, ये इस शहर को कुछ देना चाहती है, इसलिए ये प्रोग्राम रखा गया है। मेरी गुजारिश है, ये बात लंबी हो जाएगी, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मगर जो मुझको मुशाहिदा होता है, मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ, जो समझता है वो लोगों के सामने रखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में हमने ऐसे बहुत सारे लोग को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, और इंशाअल्लाह ताला जब तक जिंदा रहेगा इस कौम की खिदमत करेंगे, इस शहर की खिदमत करेंगे, पूरे देश में जहाँ जहाँ जुल्म होगा आवाज़ उठाएंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।